वो वादा पूरा नहीं हुआ। और ताज्जुब की बात है, लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन में से 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है। और आज के तारीख में ये लोगों का कहना है कि अगर ट्राइबल पॉपुलेशन इस जगह की मेजॉरिटी है तो उनको अपनी संस्कृति, अपनी ट्रेडिशन, अपनी हेरिटेज को बचा के रखने का अधिकार उनको देना चाहिए। और सवाल लाजमी है, प्रॉमिस आपने किया था, और हर बार कोई प्रॉमिस करे 15 लाख का, कोई प्रॉमिस करे 2 करोड़ नौकरियों का, कोई प्रॉमिस करे 6 शेड्यूल का। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर बार कोई प्रॉमिस करे और हर बार लोग उस प्रॉमिस को एक टाइम के बाद भूलने में मजबूर हो जाए। If I can just go that, one day of fast could be little overwhelming for you all. But Sonam Wangchu had been on fast for the past 16 days. He's barely in a condition to speak. And I feel bad sitting next to him doing this interview because I know the kind of exertion he has to go through, both emotional and physical, in order to speak to me, even if couple of lines. Just a short while back, his nose was bleeding, and I saw people immediately opening this umbrella to give him some shade. I don't know if I can ask you, how are you? Because we all know it is not easy to be on a fast for 16 days. Still, I just saw a couple of minutes back, your nose was bleeding. Has the bleeding stopped? Yes, I'm okay. Sir, 16 days of fast. Your health has become fragile. Anyone can make out the physical changes that have happened. You are still determined to continue with this? Thank you. Yes, of course, we are determined for much longer than 16 days. Why we are on this fast has a serious reason for Ladakh and for the nation. For Ladakh, it is to safeguard the fragile ecology of this very sensitive ecosystem and the unique indigenous tribal cultures that thrive here under the 6th schedule of the Indian Constitution, as expected by the people and promised by the ruling party and the government. So without that, this sensitive region, both ecologically sensitive and strategically, defense-wise very sensitive region, will have unrest because nothing is secure here. We have industrial lobbies and mining companies pushing from the south, capturing huge pasture lands, and we have the Chinese encroachment that's taking thousands of square kilometers of nomadic shepherds' lands. So this kind of region deserves the provision that Indian Constitution kept our forefathers back then exactly for these situations. So that's all we are hoping, that the government will keep the promises that they made to Ladakh in 2 different elections, which they won with heavy majority only because they made these promises. But later they backtracked, dilly-dallied for 4 years and then finally clearly declined. But we still have hope that good sense and, conscience will awaken in them and they'll finally keep their promises. Thank you very much. Thank you.
So I am at the moment involved in this movement to support this movement, to strengthen it. So I basically came all the way from the far flung area, from the LOC to support this cause, because it's very evident now that post abrogation of Article 370, the safety, security and the protection that used to be there in the Article 370, like the provision of 35A, that has not been now as of now. So Ladakh is now completely unprotected in terms of any constitutional, if we say, protection. If it allows for mining, if it allows for the outside corporates to come and exploit the nature, then there will be a mass disaster in Ladakh as well. The local ecology, as well as it will have an impact on overall the climate change. I feel that climate change and these issues has never been a political issues. If you look at even in Ladakh, in the last election, no issues was found on the basis of the climate or ecological issues. More of the issues were the local, or more of them were the some social issues, or the issues which were not so relevant to the ecology. They've already kept this in their manifesto, but again they declined it, which means the government do politics on certain issues which things are important to the public, but when it comes to the actual things, when they come to the power and granting such working on such issues, then they decline. That is evident from this moment. Why is climate change not a political issue? We are knocking elections 2024, and look at those TVs, look at those channels. Well, they call it Battle of 2024, Clash of Titans, Mega War, and whatnot. And then here our leaders talk. Tu meme, personal jibe, religion, this, that. Nobody talks about climate. ग्लेशियर से रिलेटेड एक जगह है. अगर लद्दाख ख़त्म हो जाएगा, कि ये लद्दाख की बात नहीं है, अगर आप एक कंट्री का आप ताज को ख़त्म करोगे तो पूरा कंट्री ख़त्म होने की कगार पे भी आ सकते हैं. तो एक यूथ होने के नाते मैं ये मैसेज सारे इंडियंस को देना चाहूँगा कि आज लद्दाख खतरे में नहीं है, आज पूरा इंडिया खतरे में. जब हम लद्दाख आज एक राइट, हम डिमांड नहीं बोल सकते हैं इसको, हमारा राइट जब आप लोग हम मांग रहे हैं, तो आप उस राइट को पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? आपको लगता है धोखा हुआ? या ओबियसली लद्दाख के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि मैं एक यूथ हूँ और मैं 2019 से ये स्टूडेंट एसोसिएशन बोल लो या यूथ एसोसिएशन में जुड़ा हूँ. तब से मुझे कहीं ऐसे आश्वासन जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला, आज आप खुद आप देख सकते हो हमारे मैनिफेस्टो में कितना पॉइंट्स रखा था. अगर देखा जाएगा तो 2 पॉइंट्स भी उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया. चाहे यूनियन गवर्नमेंट पे यहाँ पे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी आए, हम ये डिमांड को रखते जाएंगे जब तक लद्दाख सेफ नहीं होगा, जब तक हमारा लैंड सेफ नहीं होगा, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाला. मैं यही संदेश देना आप लोग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया कभी इधर ये प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद? यही सबसे एक बहुत बड़ा दुख समझो, या हमारी ही बदकिस्मती समझो, हमारा ही लीडर आज यहाँ पे मौजूद नहीं है. क्या नाम है उनका, बताइए, सबको जानना चाहिए. ऑब्वियसली लोग तो जानते ही होंगे, उनका एक पार्लियामेंट में स्पीच भी बहुत एक वायरल हुआ था, जमयांग सिंह नामग्याल. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला था कि ये जेटीएन कौन है. मैंने भी उस टाइम प्राउडली कहा था, एक हमारा यूथ लीडर है जो यूथ के बारे में अभी काम कर रहे हैं. लेकिन देख के ये मतलब अफसोस हो रहा है कि आज ये यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. प्रेजेंट का तो बात छोड़ो, उन लोगों ने सोशल मीडिया की थ्रू एक भी मैसेज हमारे लोगों को नहीं दिया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. अगर वो लोग एक बात कर रहे हो तो सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं. मैं ये भी क्लियरली आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट से कि आप सेफ गार्ड दे जो किस फॉर्म में दे रहे हो, किस आर्टिकल के थ्रू आप लोग देना चाहते हो? क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा साजिश दिख रहा है, इलेक्शन आने तक आप एक सेफ गार्ड दे दोगे हमें, इलेक्शन के बाद उसको हटाया जाएगा. हमें क्या भरोसा उस पर? क्योंकि अभी लद्दाख का भरोसा अभी टूटने वाला है. लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट अ legislation, and that is the reason they don't have an assembly. So now at the moment Jammu Kashmir, even though they are an UT, but they have a legislature, and there in that legislature Ladakh no longer has any representation. In Parliament, in Lok Sabha, Ladakh has only one member of Parliament. In Rajya Sabha, zero representation. And they are saying that
If public representatives are meant to represent the people and their issues on the floor of the parliament, known to be the temple of democracy, then why shouldn't India think that Ladakh is a victim of inadequate representation? बुजुर्ग इंसान है, माँ आपका उम्र बहुत है, आप फिर भी इधर पे है प्रोटेस्ट में, तकलीफ नहीं हो रहा है? Zaban net para na. Bile kwente wo mola ragale izam gunglos kyote ka kyote dukpa chives kyote in mola ladak senazen arista. Mana. No khatak tak ta nang musik yon espera ba mayan. Ating mo ang nain le. Di ka jak ma sum ji mene yong ba mayan. Dak sangit san po sa go hom so sa dak dar ka man chong ba song mende. Lo chams kyotchen kunglo. Lor dun ju ton ha mene men ba pi choni ki betas ket pa khong se met pi. Bia juju. Nju sa chang ma tapa. Du bin nga cha sikani nokpa. Bin yos bin no lo tam son sa gana en molena. Spera ba mayan bugak se kyon no pas. Dizuk molena la mai din adik se nokpa. Jang moskan ji yomba menduk. यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। अभी दादी जी का उम्र हो रहा है 75 इयर्स। तो ये अभी जो यहाँ पे सोनम वांगचुक जी है उनके सपोर्ट में इन्होंने 3 दिन यहाँ पे आए। लेकिन इतना उम्र होने की वजह से इनको अभी आने वाले जनरेशन के बारे में इनको चिंता है, लद्दाख के बारे में चिंता है, यही बोल रहे हैं। जो देश के लोग अभी तक इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, बहुत सारे मीडिया ने दिखाया नहीं ये मुद्दा को, क्या कहेंगे देश के लोगों को? सर इसमें भी मुझे कुछ पॉलिटिक्स ही लगता है कि दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल रियल है ना सर। इसमें तो क्या बोलूँ सर, अब मैं क्यों नहीं दिखा रहे हैं मुझे ये नहीं मालूम कि इस चीज़ को क्यों छुपाया जा रहा है। पॉलिटिक्स ही लग रहा है सर, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी के लेकर ही बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कांग्रेस और बीजेपी आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक साधारण सा एक लद्दाख का मुद्दा है सर। लद्दाख अगर देश का हिस्सा है तो देश को तो लद्दाख के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना तो चाहिए ना सर, वही तो इसीलिए तो हैरान है सर। हम तो वांगचुक के लिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए आए हैं सर, सोनम वांगचुक के सपोर्ट के लिए आए, और क्योंकि वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में अपना उतना बलिदान दे रहे हैं सर। कितने 15 दिन हो गए उनको अभी फास्टिंग करके। सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है वैसे तो। देश में एक नया नारा उठा है, शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी का सम्मान। हर कोई राजनीतिक दल उसी पे बात कर रहे हैं, नारी का सम्मान, नारी का शक्ति। इतनी सारी महिलाएं जब आज चाहे वो धूप हो, ठंडक हो, खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट पे उतर आए, उनका सम्मान, उनका तकलीफ चाहिए सर, ये तो ना समझना चाहिए, उन समझना चाहिए सर, ये तो समझना चाहिए। क्योंकि देखो धूप में भी बैठे हैं, बर्फ़ में भी बैठे हैं, इतने माइनस टेम्परेचर में बैठे हैं यहाँ पे धरना देने के लिए कि पोलाइटली तरीके से यहाँ पे समर्थन सभी लोग कर रहे हैं सर। तो मुझे यही इसी बात का दुख है कि विपक्ष पार्टी या जो सत्ता में है वो इस चीज़ का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे। इस चीज़ का दुख है सर। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था उसके बारे में मालूम है आपको? हाँ, मणिपुर में जो लेडीज़ के साथ अत्याचार हुआ था वो भी नहीं होना चाहिए था। उस पर भी वही पॉलिटिक्स ही खेला गया है ना सर। सब कोई चुप बैठे हैं सर, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आप लोग के बारे में भी चुप बैठे हैं? हमारे लोग, हाँ जी, हमारे इसमें भी चुप बैठे हैं सभी। मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी को यही कहेंगे कि लद्दाख के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आके देखिए यहाँ सिचुएशन क्या है, कितने पोलाइटली तरीके से लोग यहाँ पे मतलब धरना दे रहे हैं। तो उनके बारे में भी उनको थोड़ा सा संज्ञान लेकर आगे क्या करना चाहते हैं अच्छे तरीके से उसका ऐसे करे सर। लद्दाख को भी फिर मणिपुर की तरह लद्दाख को भी नहीं बनाया जाए। आपको डर लगता है? डर लगता है सर हमें। आपको डर लगता है कि लद्दाख भी मणिपुर जैसा बन सकता है अगर कुछ डिसीजन नहीं लिया तो। इसके आगे डिसीजन लेना चाहिए सर। हमारे साथ जुड़े हैं, आप देख रहे हैं, ये एक दिन के अनशन पर हमारे साथ थे और आज दिन में बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, क्योंकि हर मज़हब के, हर धर्म के लोग यहाँ पर आए। पहले हिंदू महासभा के सदस्य और अध्यक्ष यहाँ आए, फिर पंजाब से सिख जो किसान और संस्थाएं हैं वो रास्ते से, गाड़ी से यहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद यहाँ पर और धर्मों के लोग आए,
इस्लाम के, शिया के, क्रिश्चियंस सब यहाँ जुड़े हमसे। और फिर एक मशहूर नायक, एक्टर, हिंदी और दक्षिण भारत के, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपने समर्थन जताया लोगों में। तो इस तरह से आज का दिन बहुत ही रौनक था और इसीलिए शायद मेरी ऊर्जा थोड़ी आपको बड़ी दिख रही होगी आज। तो इस तरह से ये हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां अभी भी बनता ही जा रहा है और इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है इस कारवां का आप, जो कि पूरे भारत से हमसे जुड़ रहे हैं। और आप भारत के अलग अलग शहरों से लद्दाख के समर्थन में निकल रहे हैं और ये हमें ऊर्जा देती है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ बहुत बुलंद होकर सरकार तक पहुंचेगी। ये आवाज़ किसी भी सरकार को हिलाने के लिए काफ़ी है। ये भी मैं आपको बताऊं कि पिछले 21 दिनों में यहाँ पर लगभग 40,000 लोग जुड़े, हर दिन 2, 3, 4 हज़ार करके। और उससे कुछ हफ्ते पहले तो 30,000 लोग मैदान में जुड़े थे। तो इस तरह से देखें तो कोई 60-70 हज़ार लोग चल के आए, जिसे कहते हैं वोटिंग विद देयर फीट। पैरों से उन्होंने वोट दिया लद्दाख के संरक्षण के लिए और सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए। तो इतना समर्थन है आप लोगों का और यहाँ के लोगों का। लद्दाख के साथ अन्याय हुआ, साफ साफ वादा करने के बाद सरकार खुद पीछे हट गई, ये उनको शोभा नहीं देती है। जो सरकार सच्चाई की कस्में खाती हैं और जो सरकार अभी फिर चुनाव में जा रही हैं गारंटीज के साथ, वो अपने घोषणा पत्र में क्या जवाब देंगे और क्या मुंह दिखाएंगे जनता से अगर लद्दाख का ये कहानी चलता रहा। तो इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि अगला चक्र सत्याग्रह का, अनशन का हमें ना करना पड़े, उसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं, मगर पूरी तरह तैयार भी हैं। तो ये रहा अनशन की बात। अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस में खिलाफत करते हुए सरकार का डांडी तक जाकर नमक का आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने नमक बनाया, कानून, गंदे काले कानून को खिलाफत करते हुए। तो ऐसे ही हालत हमारे चंगतंग में हमारे चरवाहे भाई बहनों के साथ हो रहा है, जो कि दुनिया की सबसे कीमती पश्मीना के उत्पादन करते हैं, जिसे कश्मीर भी कहा जाता है। इससे महंगा दुनिया में लगभग कोई और फाइबर नहीं है, वो उत्पादन करते हैं। आज उन्हें अपने बकरियां, अपने याक बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। यहां बहुत उनमें से अनशन में जुड़े हैं क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत तेज है, क्योंकि उन पर गुजर रही है ये सब। तो उनके जो चरागे हैं वो एक तरफ दक्षिण की तरफ से भारतीय औद्योगिक प्लांट्स, बिजली के, सोलर के, जो दसियों हजारों एकड़ में उनसे जमीन ले जा रही है। 20,000 एकड़ ले गए हैं और 20,000 मांग रहे हैं, यानी कि 150 स्क्वायर किलोमीटर उनसे मांगा जा रहा है, जो कि उनके सबसे अच्छे चरागे हैं। अब वो क्या खाएंगे अगर उनके सारे चरागे ले गए? तो वो तो जाएंगे, उनके साथ एक सदियों, हजारों साल पुराना एक परंपरा भी डूब जाएगा। तो उनके ये हक उनसे छीने जा रहे हैं भारतीय उद्योगों के जरिए भी। और इनमें से ये सबसे अच्छे उद्योगों में है सोलर एनर्जी का। हम चाहते हैं कि भारत में लद्दाख की ऊर्जा पहुंचे, मगर वो यहाँ के चांगपा समुदाय के समन्वय से पहुंचे, उनसे बिना पूछे जबरदस्ती ना हो, जो कि अभी हो रहा है।
उनको कहा जा रहा है ये साहब आप खाली करेंगे, ये लेंगे तो लेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे, इस तरह से। जबकि 6वां शेड्यूल अगर उसका संरक्षण होता लद्दाख में तो उनको पूछे बिना कुछ भी ना हिलता, घास का एक तिनका भी ना हिलता। तो इसलिए चाहिए लद्दाख के संरक्षण के लिए 6वां शेड्यूल। वो जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे बिजली, लद्दाख की जो धूप है वो भारत के साथ क्यों ना बांटे, मगर वो अपनी मर्जी से जहां उनके चरागे कम और ऊर्जा ज्यादा है उस तरह से देंगे, मगर आज उनसे छीना जा रहा है उनसे बिना पूछे। तो ये हमें देखना है जाकर कि क्या उनके साथ हो रहा है, उन्हें कैसे रोका जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती।